molecular diagnosis. In this case, we are using rDNA technology. चलिए करते हैं rDNA technology to detect disease in early stage by using single-stranded small oligonucleotides, whether it is DNA or RNA, but they are radio level. They are radio level. ठीक है? तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, which are radio level, are used to find the defective gene by means of autoradiography. ठीक है? दूसरा जो टेक्निक है दैट इज पीसीआर. हम लोग जानते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. 3 स्टेप्स पढ़े थे ना? डीनेचुरेशन, प्राइमर एलिनिंग, एक्सटेंशन पढ़े थे ना हम लोग. 3 स्टेप्स बार बार साइक्लिंग होती है इसकी, और थोड़ा सा भी डीएनए है, एक कॉपी यदि डीएनए भी हमको मिल गया तो उसको हम लाखों कॉपी में बना सकते हैं ना. सो इफ पीसीआर इज यूज्ड, then even if microbial DNA is present in minute quantity, they can be amplified and their presence can be detected in very early stage. समझे बाबू? पीसीआर में क्या करते हैं? ये एम्प्लीफिकेशन है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन है. टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं ना, याद में रखना है इसको. ठीक है? दैट इज thermostable enzyme. Clear? The third method that is used to detect the disease in very early stage is ELISA. ELISA का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे. E for enzyme, L for linked, I for immune, sorbent, S and acid. Enzyme linked immune sorbent acid. And this test is usually used to find sexually transmitted diseases, particularly HIV. एड्स के डिटेक्शन में विजुअली एलिसा यूज होता है. However, Western dot test is also very useful to detect the HIV virus or AIDS. अब एक बात ध्यान में रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है कि एलिसा का प्रिंसिपल क्या है, तो आप कहेंगे एलिसा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. It is based on antigen antibody interaction. In this case, इसमें क्या होता है, हम एंटीजन लेते हैं. ठीक है? और यदि वायरस का इन्फेक्शन है, एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो बॉडी में एंटीबॉडी बनेगा, और वह एंटीबॉडी ह्यूमन के एंटीबॉडी से कंबाइन किया रहेगा. समझ रहे ना? कॉम्प्लेक्स बना हुआ है. एंटीजन, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, and then we are using the enzymes. Those enzymes can give a specific color with chromogenic substance.
which are usually used is peroxidase, and the most commonly used enzyme is अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, तो ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज या पेरोक्सिडेज हम यूज करते हैं। इस एंजाइम की एबिलिटी होती है कि या एंटीबॉडी से इंटरेक्शन करता है और जो प्रोडक्ट देता है वह प्रोडक्ट क्या होता है, कलर्ड होता है। बाय मींस ऑफ ऑब्जर्विंग द कलर वी कैन फाइंड whether the antigens are present or not, or whether antibody is present or not। तो दोनों में से एक पता लगा लेंगे हम, यदि एंटीजन पता लग जाए या एंटीबॉडी पता लग जाए, दोनों केस में हमको ये पता चल जाएगा कि HIV का इन्फेक्शन है। सो वी आर यूजिंग आइदर नॉन एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, तो by means of ELISA we can detect the disease in very early stage। चलिए, तो एक तो फिर हम लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस we are using biotechnology। तो biotechnology is very useful in the case of molecular diagnosis to find the disease in very early stage। अब देखो, in last class we studied about biotechnological applications in the field of agriculture। Today we have to study about the biotechnological applications in the field of therapeutics। Means biotechnological applications in the field of medicines। Applications of biotechnology to improve our health, to detect the disease, to get the products which can be used as medicines and to rectify the diseases which cannot be rectified by means of normal methods, by means of medicines। क्लियर? तो आज हम लोग देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का रोल हेल्थ के फील्ड में क्या है। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस in therapeutics। और अब यदि थेराप्यूटिक्स नहीं समझते हैं तो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स और टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी in the field of human health, to improve the human health by finding the diseases in very early conditions, by getting the products of our own genes due to which different diseases are caused, and to rectify the genetic defects too। ठीक है, तो in this case हम लोग 3 areas लेंगे। use of biotechnology in the field of medicines, in the field of health improvement, हम लोग 3 areas को डील करेंगे। that is one is
अब देखो, जब हम बीमार पड़ते हैं, then how do we detect the disease? अक्सर कैसा होता है? अक्सर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि हम बीमार हैं? On the basis of symptoms. जब सिम्टम अपीयर होता है, तब हम समझते हैं कि हमको कुछ हो गया है। तब हम जाते हैं डॉक्टर्स के पास, ठीक है? डॉक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, यूरिन कल्चर, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट, different types of tests are prescribed, and after getting those tests, diseases are detected. This is the normal process. But होता क्या है, जब symptoms appear हो जाता है हमें, it means the disease is in advanced condition. इसका मतलब डिजीज जो है वो एडवांस कंडीशन में चला गया है, तब उसका सिम्टम्स अपीयर होगा। एंड इन दैट केस इट टेक्स टाइम टू ट्रीट द डिजीज। एक तो डिजीज को ट्रीट करने में समय लगता है। हो सकता है कि ज्यादा एडवांस स्टेज में डिजीज चला गया हो, तो देयर मे नॉट बी एनी क्योर, देयर मे नॉट बी एनी ट्रीटमेंट। तो पैसे भी ज्यादा खर्चे होंगे, समय भी ज्यादा लगेगा, ट्रीटमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। इफ वी डिटेक्ट द डिजीज इन वेरी अर्ली स्टेज, then it is quite possible to control the disease in less time by spending less money, right? तो आपको क्या होगा, हेल्थ के फील्ड में यदि हम कोई ऐसा टेक्निक हमको मिल जाए जिससे हम कोई पैथोजेंस यदि अर्ली इन्फेक्टिव स्टेज में है, यानी पैथोजेंस जो है वो अल्ट्रा लो अमाउंट में हमारे बॉडी में है, इवन देन दे कैन बी डिटेक्टेड। यदि कोई म्यूटेशन हुआ है हार्मफुल, तो यदि हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें, तो देयर मे बी चांसेस टू रेक्टिफाई those diseases. And in this case, इस फील्ड में molecular diagnosis is an effective tool. हम लोग we are using RDNA technology. We are using PCR, and we are also using ELISA test to detect the disease in very early stage. समझ रहे ना? डिजीज को हम वेरी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, रेडियो लेवल्ड प्रोब्स आर यूज्ड। आप पढ़े हैं ना, प्रोब्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। सो इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी we are using radio level probes in the form of DNA or in the form of RNA, ठीक है, to detect the mutations. If there is any mutation, then it can be detected by means of RDNA
आर यूजिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या यूज करेंगे? रेडियो लेवल probes such as DNA and RNA. हम लोग सॉल्वेंट ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में पढ़े हैं ड्यूरिंग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ड्यूरिंग the DNA fingerprinting we have studied about southern blotting. So southern blotting में क्या होता है? DNA hybridization is performed. DNA hybridization is performed in the case of southern blotting. In the case of northern blotting, DNA RNA hybridization is performed. Northern blotting. Although there is one more blotting, that is western blotting, for finding the proteins. There is no eastern blotting. तो southern blotting भी है, northern blotting भी है, western blotting भी है, there is no eastern blotting. southern blotting में हम लोग क्या करते हैं? DNA के बीच hybridization कराते हैं. Means we are using DNA as a probe. northern blotting में हम लोग क्या करते हैं? RNA is used as a probe. So by using probes and then we are taking autoradiographs. autoradiographs में है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में लास्ट स्टेज, ठीक है? So we are using radio level probes and after getting the autoradiograph we can detect the mutations if any had occurred in the genome to detect even the disease like cancer. तो कैंसर को भी हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं बाय मींस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज पीसीआर। पीसीआर आप लोग जानते ही, पीसीआर में क्या करते हैं हम? डीएनए के अमाउंट को एम्प्लीफाई करते हैं। Even if microbial DNA यदि बहुत कम अमाउंट में है, अभी मान लो इनिशियल स्टेज में इन्फेक्शन हुआ ही है, और यदि हम अपने टिश्यू सैंपल को, ब्लड को एनालाइज करें, ठीक है, एंड आफ्टर एनालाइजिंग बाय मींस ऑफ पीसीआर, if any other type of genome is present in our body can easily be detected. क्योंकि पीसीआर में हम क्या करते हैं? मान लो एक बैक्टीरियल सेल का इन्फेक्शन हुआ, यदि हमको उसका डीएनए मिल गया तो हम क्या करते हैं? पीसीआर क्या करता है? उसको एम्प्लीफाई कर देता है, तो डीएनए का अमाउंट तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ना, सो इट कैन बी इजीली नॉट डिटेक्टेड। सिमिलरली एलिसा, ये एलिसा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्मेंट एसिड, याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। सर दिख नहीं रहा? अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी क्या? कुछ ठीक हुआ?